Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, I have to wait for some other students. Last topic was left. Last topic, that is the failure, success and failures of economic reforms. This topic is left. We should complete that topic right now. चलो मैं शुरू कर देती हूँ टॉपिक, ठीक है? चलो. The topic was failures and the success of economic reform. Economic reform is also called new economic policy. Economic reform is also called new economic policy, and it is also called reform only. The reform, economic reform, and new economic policy, these three are one and the same thing. Chalo. Of the third chapter is merits and demerits of LPG. We have seen the merits. Let's see the demerit. Demerit of LPG. सबसे पहली बात, एनसीईआरटी बुक क्या सबके पास है? एनसीईआरटी बुक सबके पास है? तुम लोग के पास एनसीईआरटी बुक है? अगर एनसीईआरटी बुक है तो सबसे पहले पेज नंबर 50 देखो तो, एट पेज नंबर 50, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 में निकालो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है? रिफॉर्म्स इन में सबसे पहले देखो, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर में सबसे पहले देखो ये पॉइंट, देखो यहाँ पे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. I have already marked the important lines which can be written if relation between reform and agriculture is asked to you. You can write the same these 4 points. Okay, agriculture agriculture और reform में relation क्या है? Is agriculture affected by reform or not? If yes, how? If not, then how? So in this Good afternoon, question, good afternoon everybody. You have to write the हाँ चलो पेज नंबर मैम, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 में देखो. अब बहुत ध्यान से सुनो, ये खत्म करने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी आल्सो. देखो, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर. कीप इन योर माइंड दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्कड स्पेशली इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. ठीक है, ये बात को ध्यान में रखो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड new economic policy, this new economic policy worked especially for industrial and service sector. Agriculture sector completely neglected. ठीक है, agriculture sector completely neglected. So agriculture sector was not benefited from with the different policies or the clauses made in the new economic policy which was initiated in 1991 of July. ठीक है, तो अब इसमें देखो रिफॉर्म क्या एग्रीकल्चर में हुआ था, नहीं हुआ था, तो क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं जिससे ये प्रूफ हो कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर टोटली इग्नोर्ड था. मार्क द फर्स्ट पॉइंट, मार्क द फर्स्ट पॉइंट, बहुत ध्यान से देखो. Public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkage, and research and extension. Okay, you can leave this content written in the bracket. You can leave this written content which played a crucial role in the green revolution. इसको छोड़ सकते हो, इसको हटा दो, छोड़ दो. यहाँ से लिखो public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkage, and research and extension has fallen. Has fallen. ठीक है, has fallen in the reform period. मतलब पहली बात ये कि सबसे बड़ा डिमेरिट, ध्यान से सुनो, बुक की तरफ देखो, ध्यान से सुनो. एग्रीकल्चर सेक्टर चलता है इरिगेशन से, ठीक है, पावर से,
आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है मैम। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही नसीहा है मैम। को आवाज नहीं जा रही है। चलो ठीक है। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर को जब तक इरिगेशन नहीं मिलेगा, पावर नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, रोड नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं होगा सेल करने के लिए फूड ग्रेन को, तब तक एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई काम नहीं चलेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो। ठीक है? तो इसी मेन फील्ड में इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन, power, roads, market linkage, research. In this main field of agriculture, investment was totally neglected. There was no investment in the field of agriculture. That is called the public investment. तो public investment इसमें नहीं हुआ था, तो फिर भाई agriculture का फायदा होने की तो बात ही खैर बहुत दूर है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको मार्क करो। If you want to cut it short, then leave the things which are written in the bracket portion. Okay, leave the content of the bracket, then it will become a short. Next is second point, mark करो। second देखो, पहले से यहाँ पर mark है। further the removal in the reform, the removal of fertilizer subsidy has led to increase in the cost of production. ठीक है? The removal of fertilizer subsidy has led to increase in the cost of production, which has severely affected the small and marginal farmers. Okay, small and marginal farmer means poor farmers. So poor farmers have to pay more amount of money if they want to purchase the fertilizer upon which subsidy was given earlier, but now government has decided to lift up the subsidy from the fertilizer. मैं फिर से बोल रही हूँ, फर्टिलाइजर पे पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, ठीक है? और सब्सिडी देने के कारण, ये कल बहुत डिटेल में बताए थे तुम लोगों ना, टैरिफ, नॉन टैरिफ, बैरियर। तो फर्टिलाइजर पर जब भी सब्सिडी मिलता था फार्मर्स को, तो उससे हेल्प ये होता था कि कॉस्ट उसका कम हो जाता था। ठीक है, कॉस्ट उसका कम होता था। कॉस्ट कम होने के कारण फार्मर को ये बहुत सस्ता पड़ता था। ठीक है, लेकिन आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991, according to the agreement or the clauses made in the World Trade Organization, every developed and developed countries have to lift the subsidy from the agricultural products. ये कल तुम लोग को बताए थे ना कि भाई, ये कल तुम लोग को हम बताए थे कि ये जब भी सब्सिडी दिया जाता था तो कॉस्ट कम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो लेकिन 1991 में जो एलपीजी पॉलिसी शुरू किया गया था, तो उसके तहत ये एक क्लॉज है ना कि भाई सारे डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को, दोज हु आर मेंबर ऑफ WTO, दे हैव टू रिमूव द सब्सिडी ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द फर्टिलाइजर एज वेल। तो अब उस क्लॉज के अकॉर्डिंग सारे डेवलपिंग कंट्री ने और इंडिया ने भी फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी मिलता था उसको लिफ्ट अप कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक है, जैसे ही सब्सिडीज से जब सब्सिडी जब हटा दिया गया फर्टिलाइजर से, तो वो कॉस्टली हो गया। तो कॉस्टली होने के कारण क्या हो गया कि फर्टिलाइजर तो एग्रीकल्चर फिर करेंगे कैसे? ठीक है, तो अब क्या था कि बहुत सारे जो फार्मर थे, जो थोड़ा वेल टू डू थे, वो अपनी कंट्री के फर्टिलाइजर को यूज करने के बजाय उस कंट्री से मंगवाने लगे जिस कंट्री में कंपैरेटिवली सब्सिडी, जिस कंट्री में कंपैरेटिवली प्राइस फर्टिलाइजर का कम हुआ करता था। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर हैज इंक्रीज्ड। आई एम रिपीटिंग, because of removal of subsidy on the fertilizer, some farmers started importing fertilizer from different countries, due to which the import of agricultural product or import of fertilizer especially started increasing very fast. तो जब हमारा फर्टिलाइजर महंगा हो गया, तो जो फार्मर थे वो विदेश से फर्टिलाइजर मंगाने लगे, तो भाई नुकसान तो होगा, इंपोर्ट ज्यादा हो गया, फॉरेन करेंसी हमारा जाने लगा, डॉलर हमारा पेमेंट करने के कारण निकलने लगा कंट्री से, आउटफ्लो हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, अमीर फार्मर तो इंपोर्ट कर लेते थे, व्हाट अबाउट पुअर फार्मर? तो these poor farmer have to pay a huge amount of money if they want to purchase the fertilizer for their agricultural work. ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गया। नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में जब तुम लोग जब आओगे, तो यू विल सी द 3 different parts of third point।
Now look at the third point given in your NCERT book. Point is not mentioned, but I have made some points for you. देखो इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसमें है थर्ड मैंने मार्क किया है, दिस सेक्टर, यहाँ से देखो, दिस सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेस. This sector means agriculture sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import. अब देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट का 3 पॉइंट है, थर्ड का 3 पॉइंट है, हम देखो यहाँ पर लिख रहे हैं. थर्ड पॉइंट हैज 3 डिफरेंट पॉइंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. सबसे पहले हुआ था रिडक्शन ऑन इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ था रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज. इंपोर्ट ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स जो कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लिखना, इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी घट गया. ठीक है. नेक्स्ट है रिमूवल, यहाँ एरो डाउन कर दिए और लिख दिए एमएसपी. नोट करते जाओ, MSP, reduction in minimum support price given by the government. ठीक है, reduction in minimum support price given by the government. ठीक है. थर्ड है lifting of quantitative restriction, lifting of quantitative restriction, lifting of quantitative restriction. मैंने थोड़ा सा बहुत फास्ट लिखा है. 1 2 3. पहला है रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, दूसरा है रिडक्शन इन MSP, थर्ड इज लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन. ठीक, ये तीनों पहले लिखो या स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो मैं अभी बुक की तरफ आ रही हूँ, वहां भी और क्लियर हो जाएगा. रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, सबसे पहले देखो, अगर इंपोर्ट ड्यूटी घट गया, यहाँ पर पेन बहुत ध्यान से देखो, अगर इंपोर्ट ड्यूटी घट गया इसका मतलब है कि नाउ if you want to import any agricultural input or output from abroad, now we have to pay less amount of money. ठीक है, we have to pay less amount of money because import duty has been decreased. import सस्ता हो गया. जब इंपोर्ट सस्ता होगा तो भाई हम लोग इंपोर्ट करना चाहेंगे ना ज्यादा. तो क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चरल इनपुट से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, एग्रीकल्चरल इनपुट से, हर चीज से इंपोर्ट को, इंपोर्ट टैक्स को कम कर दिया गया. जब इंपोर्ट कम होगा तो भाई हम लोग तो सामान बाहर से मंगवाएंगे. तो जो हम लोग अपने कंट्री का चावल खरीद करके खाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से चावल मंगवा लेंगे. ठीक है, जो भी कमोडिटी एग्रीकल्चर आउटपुट अगर महंगा होगा तो भाई इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट ज्यादा होने लगा. भाई जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो हमारे फार्मर तो डिस्करेज होंगे ना, हमारे फार्मर डिस्करेज होंगे. तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा सेटबैक था ये. ठीक है, आवाज आ रही है, पहले उसको बंद करो तो आवाज. ड्यूटी घटने से एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान होने लगा, ये पहला पॉइंट है. ठीक है, पहला पॉइंट, नुकसान हो गया किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया, और घटाना पड़ा बिकॉज वी आर द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट मेड इन द WTO, एवरी कंट्री हैज टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटीज. इसके कारण एग्रीकल्चरल इनपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट सबका बाहर से इंपोर्ट होने लगा, हमारे कंट्री का डॉलर बाहर जाने लगा, फार्मर को नुकसान होने लगा क्योंकि उनका सामान तो बिक्री नहीं हो पा रहा था. ठीक है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी कम होने के कारण विदेश से सामान खरीदने लगे. सेकेंड, ये पहला पॉइंट. सेकेंड है रिडक्शन इन MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. दिस टॉपिक वाज गिवन इन क्लास 9th ऑल्सो. ये क्लास 9th में भी दिया हुआ था. मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट फार्मर को सपोर्ट करती है कि भाई तुम प्रोडक्शन करो, अगर तुम्हें नुकसान होता है, अगर तुम्हें नुकसान होता है वीट के प्रोडक्शन में, कॉटन में, किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, तो तुम वरीड मत हो. तुम्हारा प्रोडक्ट अगर सेल आउट नहीं होता है मार्केट में, देन वी विल ऑलवेज बी देयर इन द मार्केट टू बाय योर ऑल आउटपुट at the prescribed price, at the prescribed minimum price, so that farmers will not have to run into losses, so that their interest may be protected. तो फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखने के लिए मिनिमम प्राइस से नीचे अगर प्राइस फार्मर का जाता है उसके प्रोडक्ट का,
तो गवर्नमेंट उसके सारे आउटपुट को खरीद करके फार्मर को उतना पैसा दे करके उसके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करती है ताकि फार्मर डिस्करेज नहीं हो, वो एमएसपी होता है। ठीक है, इन क्लास 11th I have cleared this topic while I was clearing the topic price ceiling and price floor। ये हम समझाए थे उस समय तुम लोग, और क्लास 9th में भी दिया हुआ है ना। तो एमएसपी क्या हुआ, जितने क्रॉप्स पर एमएसपी मिलता था वो रिड्यूस कर दिया गया। एंड you will be surprised to know that earlier on 23 food grains government used to give MSP, but now only 4 to 5 crops can get the support from the side of the government। मतलब पहले 23 फूड ग्रेन पर फार्मर्स को एमएसपी मिलता था। इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक, ये मैं तुम लोग को एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तुम लोग इसको अपने आंसर शीट में लिख सकते हो। एमएसपी पहले 23-24 फूड ग्रेन पे मिलता था, फार्मर बहुत खुश होते थे, भाई इतना चीज का प्रोडक्शन करो, प्राइस घटेगा तो गवर्नमेंट खरीद लेगी, हम नुकसान से बच जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ क्या किया, 23 से 22, 22 से 21, 20, 18, 19 करते करते इट इज वेरी सैड that only for 4 to 5 crops MSPs are given by the government। तो अब फार्मर को बहुत कम फूड ग्रेन्स पे एमएसपी मिलता है। तो ये डिस्करेजिंग फैक्ट हुआ कि नहीं? डिस्करेजिंग हुआ ना भाई। तो फार्मर अब क्यों प्रोडक्शन करें, अगर घाटा होगा तो कोई उनको हेल्प करने नहीं आएगा। तो इट इज अ वेरी सेटबैक फॉर द फार्मर ऑफ इंडिया। क्लियर? सब लोग सुन रहे हो? सब लोग सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So third is lifting of quantitative restriction. Lifting of quantitative restriction. Now, this whole thing is called quota. This whole thing is called QUOTA, quota. Quota means quantitative restrictions upon anything is called quota। ठीक है, किसी चीज के क्वांटिटी पर जब उसको रोक लगा देते, बैरियर लगा देते, तो वो कोटा हो जाता है। ठीक है, पहले फार्मर को था मतलब जितने भी मान लो हम लोग हो गए, ठीक है, अगर हम मान लो कि 2 पैकेट चावल का मंगाना चाहते हैं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, 2 पैकेट अगर हम मंगवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, तो अब क्या है ना कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि नहीं, 1 पैकेट आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवाइए, 1 पैकेट आप इंडिया से खरीदिए, 1 पैकेट आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवाइए, 1 पैकेट इंडिया से खरीदना होगा। Such type of restriction is called quantitative restriction। Here, out of 2, I am allowed to buy only 1 packet of rice from Australia or from any other country। That is called quota or the quantitative restriction। मेरे क्वांटिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 2 आप मंगाना चाहती हैं, 2 मत मंगाइए, 1 मंगाइए, ठीक है, लेकिन 1 आपको अपने कंट्री से खरीदना होगा। तो भाई हमारे कंट्री का 1 पैकेट तो सेल होगा ना, तो कुछ तो फायदा होगा। तो पहले ये कोटा इम्पोज किया गया था बिफोर 1991, ठीक है। बट व्हेन एलपीजी पॉलिसी, when these 3 policies have been adopted by the government in July 1991, just after July 1991, these quota restrictions have been completely banned। It have been completely banned। ये खत्म कर दिया गया। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि आपको 5 मंगवाना है ना, 1 2 3 4 5 मंगवाना है आपको, 5 मंगवा लीजिए, 5 मंगवा लीजिए, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। तो भाई 5 हम मंगवाएंगे तो आखिर 5 हमने इंपोर्ट किया, तो हमारा 5 को पे करने के लिए फॉरेन करेंसी भी तो बाहर चला गया, प्लस हमारे कंट्री का एक भी पैकेट चावल का सेल आउट नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिस्करेजिंग था कि नहीं? ये डिस्करेजिंग था, ठीक है। तो दिस कोटा, ड्यू टू लिफ्टिंग अप ऑफ कोटा रिस्ट्रिक्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आवर फार्मर्स गॉट कंप्लीटली डिस्करेज्ड। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग इस 3 पॉइंट को पहले यहाँ पर देखो, तो देखो, this sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import duty on agricultural product। I have cleared this point first। Second, removal of MSP, minimum support price। Third,
लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। अपनी कॉपी में तुम लोग क्या करना ना, जब एग्जाम में लिखोगे ना तो इसमें पॉइंट डाल देना, तो एग्जामिनर को बहुत जल्दी दिख जाएगा ये, तो टिक 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 करके मार्क्स दे देंगे तुमको। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, थर्ड का फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट रिमूवल ऑफ एमएसपी, थर्ड पॉइंट ये लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। These have adversely affected Indian farmer as they now have to face increased इंटरनेशनल कंपटीशन, मतलब अब उनको कंपटीशन फेस करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ इज मोर ओवर, मतलब जब फोर्थ पॉइंट लिखोगे तो इसको हटा देना एग्जाम में। बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज इन एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, मतलब भाई 1991 के बाद तो हम लोग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था, बताए थे ना। $7 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने हमें इसी कंडीशन पर दिया था कि भाई मैं पैसा तो दे रहा हूँ, $7 बिलियन 91 की मैं बात कर रही हूँ, $7 बिलियन तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू करिएगा तभी। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और $7 बिलियन ले लिया। उसी के कारण, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजीज इन एग्रीकल्चर, देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट on towards production for the export market। मतलब कि अब हम लोग डोमेस्टिक मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। राइस, पल्सेस, व्हीट, जूट, कॉटन, जो भी हम लोग अपनी कंट्री के लिए जो प्रोडक्शन जो फार्मर करते थे, अब वो लोग इसको छोड़ करके एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन करने लगे। तो जिस चीज का ऑस्ट्रेलिया में डिमांड, इंडिया, जापान में डिमांड, सिंगापुर में डिमांड, अमेरिका में डिमांड, जिस चीज का इन कंट्रीज में डिमांड होता था एक्सपोर्ट करने के लिए, उसी को फार्मर्स ग्रो करते थे। जिन चीज का कंट्री में डिमांड होता था उसको ये प्रोडक्शन नहीं करते थे या कम करते थे। कम प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा कि नहीं? प्राइस बढ़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में उस प्रोडक्ट का, क्योंकि कम प्रोडक्शन हो रहा है। क्यों कम प्रोडक्शन हो रहा है? बिकॉज ऑल फार्मर्स आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग द or growing the food grains which are highly demanded in the different countries of the world. So they have switched over from the production of commodity to the domestic market for the to the फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, तो अपने कंट्रीज के बजाय दूसरे कंट्री के लिए ये प्रोडक्शन करने लगे। तो फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप के पर फोकस करने लगे एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए कैश क्रॉप का प्रोडक्शन, डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं। इन ल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ये दिस पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस पुट्स प्रेशर ऑन प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। दिस इज फोर्थ पॉइंट। बोलो कोई क्वेश्चन? Is there any question? कोई क्वेश्चन है या आगे बढ़ा जाए? क्लियर? चलो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हरी अप, फटाफट हम लोग ये करें। रिफॉर्म इन इंडस्ट्री, रिफॉर्म इन इंडस्ट्री। नाउ देखो सी द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंपोर्ट वेरियस सच एज चीप इंपोर्ट। ये अपने आप में सारी कहानी कह दे रहा है। चीपर इंपोर्ट मतलब अब हम लोग भाई कोटा हट गया ना, कोटा हट गया, सब कुछ हट, मतलब अब हम लोग जितना इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गया, कोटा हट गया, तो अब तो हम लोग फ्री हो गए इंपोर्ट करने के लिए ना। तो जितना हम लोग इंपोर्ट करने के लिए फ्री होंगे, जितना आजाद होंगे, क्योंकि अब इंपोर्ट सस्ता हो गया है। तो बताओ तो एक बात, आभास बताओ तो, सीमांत बताओ तो, क्या हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि विदेश से सामान मंगवाएं? चाहेंगे ना। तो जब हम लोग इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा तो we will never prefer to buy the commodity from the domestic market, rather we will ask for the more and more quantity of the commodity from abroad because import have become very cheap, सस्ता हो गया है ना। तो पहला पॉइंट ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट भी था हमारे, मतलब इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जितना चाहिए था उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। मोर ओवर अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर ध्यान से पहले देखो तो ये लास्ट पॉइंट देखो। तुम लोग जब इसको पढ़ोगे ना बच्चों, जब तुम लोग इसको देखोगे ना, इसी का डिटेलिंग यहाँ पर है,
इसी का डिटेलिंग है। जैसे देखो एक मैंने मार्क किया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। ग्लोबलाइजेशन में तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि पूरे वर्ल्ड के इंडस्ट्री से कंपटीशन होता है। तो भाई जो इंटरनेशनल जो प्रोड्यूसर्स हैं, ऑब्वियसली वो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजिकली ज्यादा वो एडवांस है हमसे, तो उनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के सामने तो बिल्कुल आगे रहता है। तो उनका प्रोडक्ट सेल आउट होता है, हमारा सेल नहीं होता है। तो आखिर कंपटीशन में इंडियन प्रोड्यूसर्स तो पीछे हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट। पावर सप्लाई भी नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारा प्रॉब्लम। और लास्ट देखो यहाँ पर, लास्ट इज a developing country like India still doesn't have the access to developed countries market. ये बहुत important line है. This line is very important. Actually, this line is the conclusion of all the contents. A developing country like India still doesn't have the access to developed country market because of high non-tariff barrier. यानी कि हमारी कंट्री के लिए डेवलप कंट्री का मार्केट नहीं खुला है। ठीक है। Still we all are the member of WTO, developed country, developing country, backward country, very poor country. We all are the member of the WTO. Every country has to open their market for all rest of the country, even though developed countries markets are not open for the developing country or poor country. ठीक है। डेवलप कंट्री अपने मार्केट को ना ऐसा कैप्चर किए रहते हैं ना कि वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होने ही नहीं देते हैं। डेवलप कंट्री इतने कनिंग होते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, रशिया है, ये दूसरे कंट्री में अपना सामान भेज देता है, बेच देता है, लेकिन अपने कंट्री में दूसरे कंट्री के सामान को आने नहीं देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर। ये बहुत तरह का बैरियर लगाए हैं। ये अपने लोगों को सब्सिडी देते हैं, अपने लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री का सामान ही नहीं आने देते हैं, लेकिन अपना सामान हमारे कंट्री में भेजते हैं। तो इसी को तो कहा जाता है कि WTO बहुत डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्लास 10 में भी था। WTO बहुत पार्शियल है, डेवलप कंट्री को ध्यान देता है, डेवलपिंग कंट्री को ध्यान नहीं देता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। दिस द लास्ट पॉइंट। और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हो, तुम लोग इसको एग्जाम्पल लिख सकते हो। USA has not removed their quota. देखो यहाँ लिखा हुआ है, USA has not removed their quota restriction on import of textile from India and China. कितना बदमाश है ये। इंडिया और चाइना से सामान अपने कंट्री में नहीं आने देता है, ये कोटा लगा दिया है अपने कंट्री में, और हम लोग को कह रहा है कि कोटा हटाओ। ठीक है, क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट इज, आ जाओ नेक्स्ट में। अब बताओ, क्या एनसीईआरटी बुक सबके पास है अभी फिलहाल? एनसीईआरटी बुक सबके पास है? यस मैम। हाँ है। तो एक काम करो, आप बिना मैं बुक दिखाए बता रही हूँ। इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऑन disinvestment. Impact of LPG policy on disinvestment. Now we will talk about the disinvestment. We all know the meaning of disinvestment. In the policy of disinvestment, government sell either all the shares of the PSUs. लाइट चली गई है, अभी लाइट ऑन हो जाएगा, कुछ देर केवल आवाज सुनो और समझो इसको। अभी ऑन हो जाएगा जनरेटर, फिर हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे। ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट में बताया था मैंने तुम लोगों को कि गवर्नमेंट या तो अपने सारे शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देती है, या अपने किसी कुछ शेयर को सेल कर देती है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक सेल होता है, चाहे वो माइनॉरिटी सेल होता है। ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, government sells its equity shares to the private sector enterprises. In this way, government can get some amount of money from the private sector. ठीक है। तो गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से पैसा मिल जाता है। तो भाई गवर्नमेंट को पैसा मिलने का उम्मीद था, ठीक है,
इसीलिए गवर्नमेंट ने फटाफट 91 के बाद ना 91 के बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, फटाफट बहुत सारे पीएसयूज को सेल कर दिया, हमारे बहुत सारे पीएसयूज को सेल कर दिया। उसमें एयर इंडिया हो गया, बीपीसीएल का बात चल रहा है, फिर एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, तो ऐसे बहुत सारे पीएसयूज थे जिनको कि गवर्नमेंट ने पैसे के लालच में प्राइवेट सेक्टर के हाथों दे दिया, सेल कर दिया। ठीक है, क्यों? गवर्नमेंट को पैसा मिलना था। गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेक्ट किया था, सबसे बड़ा डिमेरिट है ये, गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इतना पैसा मुझे आएगा इसको एनटीपीसी को सेल करने से, ओएनजीसी को सेल करने से, बीपीसीएल का बात चल रहा है, रेलवे में डिस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो अगर इतना गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था तो लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं आया, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं आया। एक बार की बात मैं बता रही हूँ, देखो सबसे ज्यादा डिस इन्वेस्टमेंट हुआ था 2003-4, सबसे ज्यादा डिस इन्वेस्टमेंट वाला ईयर कहा जाता है 2003-2004, जब बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का डिस इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी था, फिर मारुति था, मारुति उद्योग लिमिटेड था, इसके भी शेयर को गवर्नमेंट ने सेल कर दिया कि भाई पैसा मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया था 56,000 करोड़ पैसा पाने का सेल करके अपने सेक्टर को, बट गवर्नमेंट could get only 36,000 crore. The government expected to get 56,000 crore from the disinvestment process, but unfortunately government could get only 36,000 crore. तो लो भाई, पैसा भी नहीं मिला और पीएसयू तो हाथ से चला ही गया। तो इस तरह का लॉस हुआ था डिसइन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉस हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लॉस हुआ, सिमिलरली गवर्नमेंट हैड टू फेस द लॉसेस इन द फील्ड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी आल्सो। ठीक है, अब एक लास्ट रिफॉर्म देखो, पेज नंबर 51। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना कि 56,000 करोड़, देखो तुम्हारे बुक में लिखा भी हुआ है 51 पेज नंबर में, फर्स्ट कॉलम में सेकंड लाइन है। इन 2014-15 the target was about rupees 56,000 crore, whereas the achievement was about rupees 34,500 crore। तो कितना का लॉस हुआ? और सबसे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था कब? 2003-4 में। अब बहुत अब उतना मुझे ध्यान नहीं है कि किसका किसका किया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा ईयर उसी को माना जाता है। ठीक है, और 2014 के बाद जब एनडीए के गवर्नमेंट आ गई तो तुम लोग तो सुन रहे हैं कि अब तो रेलवे में भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। ठीक है, चलो लेट्स सी द लास्ट वन। द लास्ट इज लास्ट एट पेज नंबर 51, reform and fiscal policy. Fiscal policy means policy related to tax, clear? In the field of tax, as you are knowing already, because I have cleared this point, that taxes are of two types, direct taxes and the indirect taxes. Earlier, before 1991, rate of taxation, it may be direct tax, it may be indirect tax, rate of taxation was very high, due to which people could not want to deposit the tax to the government. Okay, because of high rate of taxation, because of high rate of indirect tax, high rate of direct tax, nobody wanted to deposit the taxation to the government, or procedure to submit the taxation was very lengthy and very cumbersome task. तो इसलिए लोग चाहते थे कि भाई ज्यादा भी चुकाना, 20% अपने सैलरी का, सोचो 20% सैलरी का गवर्नमेंट को देना था, तो कौन देना चाहेगा पैसा गवर्नमेंट को? और ऊपर से टैक्स चुकाने का प्रोसेस भी बहुत लेंदी था, लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता था, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता था, तो लोग टैक्स जमा करना ही नहीं चाहते। इसी बात से बचने के लिए गवर्नमेंट ने 91 के बाद टैक्स के रेट को कट कर दिया, रिड्यूस कर दिया। क्या सोच करके? ये सोच करके कि भाई पैसा आएगा, लोग टैक्स जमा करेंगे, टैक्स का रेट कम होगा और टैक्स इवेशन कम होगा। टैक्स इवेशन, EVASION, the word you can get in your book, टैक्स इवेशन। इवेशन मतलब चोरी करना, टैक्स छुपाना, ब्लैक मनी वो तो हो गया। तो जब टैक्स का रेट कम होगा तो पीपल विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, एंड इन दिस वे रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज। ये गवर्नमेंट ने सोच करके 91 के बाद टैक्स के रेट को घटा दिया।
ठीक है, लेकिन जितना फिर भी टैक्स के थ्रू रेवेन्यू आना चाहिए था उतना नहीं हुआ, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड टू गेट a very huge amount from the taxation, but unfortunately just after 1991 the adoption of LPG policy, when government brought about fiscal reform, government was not able to get the higher money as revenue from the taxation. तो गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया, उसके बाद भी गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा नहीं आया। तो these were some of the loopholes or the demerits of the LPG policy, and that was the last topic. ठीक है, now any question from this chapter? In test, in your 4th online test of economics, this chapter will be asked to you, ठीक है, regarding globalization, liberalization, privatization, outsourcing, World Trade Organization, success and failures of LPG policy, ठीक है, all types of reform, tax reform, फिर तुम्हारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म हो गया, all these are the portion for your 4th online test, ठीक है। Any question from this chapter? I have not left us even a single topic of this chapter. मैंने एक भी छोड़ा है, ठीक है। इसमें एक एक जो टॉपिक हमने टच किया, ओके, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट द कंटेंट गिवन इन द बॉक्स, नवरत्ना एंड पब्लिक सेक्टर पॉलिसीज, बिकॉज gray colored box contents are the part of the question framing. यहाँ से पहले सुन लो, 2 कलर का बॉक्स है एनसीईआरटी बुक में, ये हम लोग को बताया भी गया है, इसलिए मैं तुम लोग को कम्युनिकेट कर रही हूँ। एक है पिंक कलर बॉक्स है, पिंक या ऑरेंज कलर बॉक्स है, वर्क दिस आउट लिखा हुआ है, वर्क दिस आउट, और एक है ग्रे कलर बॉक्स, ठीक है। तो पिंक कलर के बॉक्स का कंटेंट नहीं आएगा, बिकॉज इट इज गिवन टू द स्टूडेंट ओनली फॉर कंडक्टिंग सर्वे और फॉर सब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट on your own, so that will not be asked to you, but the content given in the gray color box is an extra information related to the topic of the chapter, so don't forget to complete it. This can be asked to you in form of MCQ, या तो ये MCQ में आएगा। हाँ बोलो मैम, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। मल्टीलेटरल, मल्टी मीन्स मोर देन 2, मल्टी मीन्स मोर देन 2, by, by means 2, by means 2, multi means more than 2, it may be 3, it may be 100, it may be lakh, it may be crore, ठीक है। when trade is taking place between any 2 countries, that is called bilateral trade agreement. When trade or export imports are taking place between any 2 countries, that are called bilateral trade agreements, whereas multilateral trade agreement means when the same thing, trade or the export imports are taking place among the several countries, that are called multilateral trade agreement, ठीक है। तो World Trade Organization is focusing on multilateral trade agreement, so that resources of every country can be used properly, and commodity of one country can be sent to the different countries of the whole world. तुम ही सोचो दिमाग, अगर मान लो कि इंडिया और बांग्लादेश में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, अगर इन दोनों कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो मेरे कंट्री का जो लीफ है, लीफ टी है, चाय पत्ती है, वो बांग्लादेश में जाएगा, बांग्लादेश का जो चावल है मेरे कंट्री में आएगा। तो consumer of only these 2 countries will be benefited, consumers of only these 2 countries will be benefited, ठीक है। लेकिन अगर तो ये बेनिफिट तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना, लिमिटेड हो गया 2 कंट्रीज के बीच में। लेकिन सोचो अगर हम अपने अगर चाय पत्ती को पूरी दुनिया में भेजें और पूरी दुनिया का सामान बाकी दुनिया में जाए, तो मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, इसका फायदा ज्यादा